police officers hold a post that is replete with responsibility and stress. The officers face dangerous situations, aggressive suspects, and curious citizens. So I think you all have understand for what thing I am talking about. So I'm Nikita Sharma, would like to welcome you all in SOC Talk Show. Today I have joined with 1991 batch IPS officer, respected Dr. Varun Kapoor sir. Please welcome sir in SOC Talk Show. Sir is currently working as Additional General Director of Police, Madhya Pradesh, India. Sir has worked in astounding way for a number of different posts both in and outside of country. His capacity, capability and quick decision making skill blend him well in every environment, in any situation, and helped him to leave his footmarks and footprints wherever he worked. Sir has 3 world records in his credit, and one of them is for maximum number of cybersecurity awareness. Sir is only one IPS officer of Asia who has double doctorate degree in cybersecurity. Sir has a long list of awards and achievements. If I am going to narrate all the awards and achievements, then it will take very long time. So I am quickly moving forward because for that I need very long time. Moving ahead, we all are aware that Sir has given his contribution in police department as well as in cyber security field. For cyber awareness also Sir is working. But in this talk show, I am trying to cover up something more. I am trying to explore some more things about Sir. So please welcome Sir. And Sir, shall I start question answer round? Sure. Yes, sir. Sir, somewhere I read that you also work, or can say you are contributed in the field of drug abuse. So, sir, please tell us how we can help anyone who is addicted to drug. Our main objective should be always to prevent addiction. That's the first stage. That nobody should reach that level that he becomes or she becomes an addict. So prevention of drug addiction is very important, and that can be brought about by awareness sessions, awareness inputs for students at all levels. People of today's age, आज के ज़माने में जो लोग हैं वो काफी अवेयर हैं कई चीजों के बारे में, पर फिर भी उनको जानकारी, उनको मैसेज मिलना चाहिए, ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि मैंने ड्रग अवेयरनेस के बहुत सारे सेशंस किए हैं ऑल ओवर दी कंट्री. तो बच्चे हैं, युवा हैं, ये इसके सबसे बड़े टारगेट्स होते हैं. दे आर द बिगेस्ट टारगेट्स आर द यूथ, and they have to be protected, and the message of awareness of drug abuse के खिलाफ has to reach them. So that is not being done. People are feeling that, oh, it's very cool. Actually क्या है, these drug addicts जो बनाते हैं लोग, वो सिर्फ ये बोल के नहीं बनाते कि भाई आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा तो चलो ड्रग्स ट्राई करो. दैट इज वन वे ऑफ मेकिंग पीपल एडिक्ट्स, बट देयर आर मेनी अदर वेज. जिसका जो शौक होता है उसमें ये लोग उसको मिला के उस बच्चे को, युवा को एडिक्ट बनाते हैं. कोई पढ़ाई के शौकीन है तो उनको बोलते हैं कि तुमको पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो जरा ये ले लो. किसी को बोलेंगे कि वो आप स्पोर्ट्समैन है तो बोलेंगे स्पोर्ट्स में आपका परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगा तो ट्राई दिस ड्रग. कि somebody is very conscious about his looks and his weight and all that, तो ऐसे लोगों को, स्पेशली लेडीज गर्ल्स को, ये करते हैं कि आपका वेट कम हो जाएगा, ये आप MD एक ड्रग होती है वो ले लीजिए. तो ऐसे करके देयर आर वेरियस वेज दैट वो एडिक्शन में लोगों को डालते हैं. सिर्फ ऐसा नहीं है कि मजे करने के लिए या एंजॉय करने के लिए बहका के. तो इसीलिए बच्चों को तैयार होना चाहिए कि सिर्फ हमको एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट का बहाना नहीं मिलेगा, कई टाइप्स के लोग प्रलोभन देंगे. तो दैट अवेयरनेस मैसेज शुड गो. बट वंस एडिक्शन हो गया, इन स्पाइट ऑफ उस बच्चे के सब प्रयासों के बावजूद और जो लोग हैं उनको बताने के बावजूद, अगर बाई चांस ऐसा कभी हो भी गया, गलती होती है, सबसे होती है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हो गया, देन इट कम्स द पार्ट ऑफ डी एडिक्शन. जिसे आपने बोला था कि अगर कोई एडिक्ट है तो उसको कैसे करना है. तो एडिक्शन से बाहर निकलना एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है. इट्स वेरी टफ depending on the type of drug you're addicted to. Like there is a depressant drugs जो होते हैं like heroin and the family of drugs, very difficult to leave that addiction. Whereas there is one called stimulants which are cocaine and उस type के drugs, वो थोड़ा वो भी बहुत मुश्किल होते हैं. But एक होते हैं hallucinogens like गांजा जिसे बोलते हैं, we call it
कैनबिस एंड उससे एडिक्शन से निकलना कंपैरेटिवली इजियर होता है। तो देयर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, उसके एडिक्शन से छुटकारा पाना अलग अलग उससे होता है इंटेंसिटी से। बट द ओनली वे देन इज टू अप्रोच अ डे एडिक्शन सेंटर। आप उस बच्चे को या युवा को समझाए, काउंसिल करें कि इट इज फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट कि वो इससे बाहर आए, और फिर उनको आप डे एडिक्शन सेंटर ले जाएं। सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, एंड वो एक बड़ी बैटल होती है जो लड़नी पड़ती है उस एडिक्शन के खिलाफ, बट उसको करना जरूरी है। हार्म रिडक्शन बोलते हैं इसको। एक बार हार्म हो गया तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपन, और बच्चे को वापस स्वस्थ और युवा को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दैट इज द बेस्ट वे। काउंसिल करें उनको, उनसे बात करें, उनसे दूरी ना बनाएं कि अरे ये तो एडिक्ट है, ऐसे बातें नहीं करनी। नो, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन एंड गेट हिम आउट ऑफ दैट एडिक्शन। दैट इज द बेस्ट अप्रोच आई कैन सजेस्ट। जी सर, तो आपने जैसे कि बताया, पहले तो कोई कन्विंस करे तो हम उसके लिए कन्विंस ना होए कि गेम है या स्टडी है तो उसमें हमारा मन लगेगा, और सेकंड, यदि कोई एडिक्टेड हो भी गया है तो उसकी काउंसलिंग करके उससे ठीक किया जा सकता है। उपचार करें उसका। यस जी सर। सर, सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि आपने विमेन सिक्योरिटी के लिए भी कई कार्य किए हैं। आपने कई वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं जहां पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। तो सर, यहाँ पर आपकी साइड से एक मैसेज विमेन्स के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू देयर ऑफ देयर सिक्योरिटी, कैसे वो सिक्योर रह सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू साइबर एंड इन जस्ट नॉर्मल वर्ल्ड? देखिए, साइबर वर्ल्ड का तो अपन बाद में सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में द फिजिकल वर्ल्ड जो है उसमें सिक्योरिटी अगर बच्चियों को चाहिए तो उनको दे हैव टू बी अवेयर फर्स्ट ऑफ देयर राइट्स, कि उसमें उनके अधिकार क्या हैं, कानून क्या बोलता है महिला सुरक्षा के लिए, उसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। एंड सेकेंडली फिर उनको तैयारी होनी चाहिए। यू हैव टू बी अवेयर एंड देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, देखिए, everyone is prepared for their own security. The girls and women have to be also prepared for their security. अगर कभी ऐसे खतरे का सामना हो गया तब आपको क्या करना है और तब आपको क्या कदम उठाने हैं सेल्फ डिफेंस में, या फिर किसी को आप सूचित कर सकते हैं तो वो करिए, या फिर आप किसी को कहीं उसके उस स्थान से हट सके यहाँ पे डेंजर है तो वो करिए। मतलब यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। फर्स्ट इज अवेयर ऑफ व्हाट कैन हैपन, सेकेंड इज प्रिपरेशन, अगर वो हो भी गया तो फिर हमें क्या करना है। तो उसके लिए कई वर्कशॉप्स होते हैं, कई जगह आपको मटेरियल मिलता है, ऑन द इंटरनेट मिल जाता है, एंड देयर आर मेनी डिजिटल आजकल एप्स होते हैं जिसमें अलार्म आप साउंड कर सकते हो। कभी कभी स्थानीय पुलिस एंड भी आपको सुविधा देती है कि एंड वहाँ के प्रशासन या सिस्टम की आपको उनको उन तक अलार्म का आप सूचना दे सकते हो, इमरजेंसी का सूचना दे सकते हो। एक ऐप आ रहा था बाद में, बिकॉज ऑफ कोविड वो बन नहीं पाया। आई वाज ट्राइंग टू मेंटर दैट, एक टीम थी वो स्टूडेंट्स की, वो पता नहीं दे हैव लेस टाइम नाउ बिकॉज कोविड में ये बंद हो गया था, कि देयर इज अ कम्युनिटी बनाएंगे हम, सोशल कम्युनिटी, जिसमें गुड पीपल विल बी एडेड, women will also be there, and then if they have a problem they can inform that community member who, and somebody may be close by, वो आके आपका मदद कर सकता है। तो इट इज अ वेरी गुड आइडिया। वो पता नहीं वो ऐप को लेके किधर चले गए, बट वो बन जाता है। इट विल बी अ वेरी गुड एडिशन यूजिंग द कम्युनिटी फॉर सिक्योरिटी ऑफ women थ्रू डिजिटल मीन्स। दैट वुड हैव बीन अ रियल रेवोल्यूशन। तो वो ऐसे माध्यम से आपको उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है द रियल वर्ल्ड में। जैसे ऐसे प्रिपेयर फॉर इट, यू शुड बी रेडी, व्हाट कैन गो रॉन्ग, यू शुड नो योर राइट्स, दैट इज अवेयरनेस का पार्ट, क्या क्या कानून है। सेकंड इज योर प्रिपरेशन, कि अगर कुछ हो ही गया तो फिर मेरे को क्या करना है। एंड थर्ड इज नए नए ये जो आउटरीच के मेथड्स आते हैं डिजिटल एंड ऑल दैट, उनका यूज करना, एप्स को यूज करना, एंड ताकि आपको हमेशा सुरक्षित महसूस हो। आपके पास एक ऐसी चीज हो जो आप यू कैन टर्न टू व्हेन द ट्रबल मे बी व्हेन इट कम्स। डिजिटल वर्ल्ड, जहां तक ख्याल जो सवाल है साइबर वर्ल्ड का, उसमें सुरक्षा इज अ बिगर चैलेंज फॉर विमेन ऑल्सो, फॉर एनीवन। सुरक्षा इन द डिजिटल वर्ल्ड इज अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज इसमें आपको डेंजर नहीं दिखता। रियल वर्ल्ड में तो आपको डेंजर दिख जाएगा। साइबर स्टॉकिंग जैसे बहुत ज्यादा खतरनाक है कंपेयर टू नॉर्मल स्टॉकिंग। नॉर्मल स्टॉकिंग में भी महिला की, बच्चियों की असली दुनिया में स्टॉकिंग होती है, पीछा करते हैं लोग, उनको दिखता है वो खतरा, तो बच्ची या महिला कुछ कर सकती है एंड अपने आप को सुरक्षित रख सकती है, बिकॉज खतरा आपको दिख गया। बट वर्चुअल वर्ल्ड में तो आपको खतरा दिखना नहीं है। साइबर स्टॉकिंग में आपको पता चलना नहीं है कि वो मिस्ड कॉल कौन बार बार दे रहा है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन बार बार भेज रहा है। सो इट इज अ बिगर चैलेंज टू फेस सिक्योरिटी इश्यूज इन द डिजिटल वर्ल्ड। और उसका एक ही तरीका मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों से, बच्चियों से भी यही बोलूंगा, महिलाओं से भी यही बोलूंगा, कभी भी आपको ऐसा लगे कि वर्चुअल दुनिया में आपको कोई खतरा है, जैसे स्टॉकिंग हो रही है आपकी या आपकी बुलिंग हो रही है, तो फिर आपको उसकी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
इसमें क्या है कि आपको सामने तो कोई खड़ा नहीं है आपको चाकू लेके या वो लेके, तो थ्रेटन तो आपको होगा नहीं, बस सिर्फ शब्दों से होगा, शायद इशारों से होगा एंड फीलिंग से होगा कि कुछ खतरा है, पर उसमें फिर लगता है इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे को ये कहना है कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको आपको रिपोर्ट करना चाहिए, और ताकि आपको अगर आज ज्यादा बड़ा खतरा आने वाला हो तो वो आप बच जाओ। तो डोंट इग्नोर, रिपोर्ट इफ यू फील डेंजर इन द वर्चुअल वर्ल्ड। यू विल नेवर सी द डेंजर, यू माइट फील इट, तो यू इफ यू फील इट यू मस्ट रिपोर्ट इट। एंड सेकंड, दो चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ, वर्चुअल दुनिया में किसी को भी सुरक्षित रहना है, विच इंक्लूड्स गर्ल्स एंड वुमेन, उनको अनजान से कोई संपर्क नहीं रखना। डोंट हैव कॉन्टैक्ट विद अननोन एंटिटीज इन द वर्चुअल वर्ल्ड। अनजान व्यक्ति फोन करे तो मत बात करिए, अनजान व्यक्ति फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो मत उसे एक्सेप्ट करिए, अनजान व्यक्ति अनजान सोर्स से अगर आपको ईमेल आए तो कोई अटैचमेंट डाउनलोड मत करिए, अनजान सोर्स से एसएमएस आए तो कोई लिंक मत दबाइए। ऐसे करके मतलब दैट्स अ रूल यू मस्ट मेक, दैट इफ इट इज अननोन यू शुड हैव नो कॉन्टैक्ट। एंड सेकंड, जैसे ऑनलाइन डेटिंग हो रही है, ये ऑनलाइन कई सारे मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, यू डोंट नो द पर्सन कौन है दूसरी तरफ, और लोग दोस्तियां कर लेते हैं, सब चीज कर लेते हैं, तो इट बिकम्स अ बिग डेंजर। तो इसलिए अनजान से आपको कोई संपर्क नहीं रखना है, ये तो पहला बात है। दूसरी बात है, अगर जाना पहचाना भी लगे तो उसको एक बार आप वेरीफाई करिए, बिना वेरिफिकेशन आगे मत बढ़िए। तो ये दो तीन चीजें अगर महिलाएं अच्छे से लागू करेंगी तो सुरक्षित वर्चुअल वर्ल्ड में रहेंगी। अनजान से नो कॉन्टैक्ट, जाना पहचाने भी लगे तो उसको एक बार आप तस्दीक करिए, उसकी वेरीफाई करिए। एंड थर्ड, जैसे बोला, जब भी खतरा अगर ऐसा लगे तो उसको इग्नोर नहीं करना, उसको रिपोर्ट करना। Thank you so much, sir, for the safety tip with respect to real world and virtual world as well. Now moving towards the next question. Sir, while you exploring your profile, I again found a new term that was suicide prevention. तो सर आप बता सकते हैं, जैसे कि सुसाइड केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो how we can predict the suicide in earlier stage? Is it possible to predict it? Predict is, I don't know the technical. See, I was doing it as a police officer, and हमने start किया था, मैं जब एडिशनल एसपी सिटी था इंदौर में, तब it was, I think आजकल तो कई लोग ऐसी चीजें करते हैं for helping people who have issues and suicidal tendencies, but that must have been the first one effort by any thing in this state, I guess. It was in 1996 जब मैं यहाँ पे एडिशनल एसपी सिटी था, आज से मे बी 26 years पहले, तब एक योजना स्टार्ट करी थी, उसको हम बोलते थे हेल्प, मतलब फॉर सुसाइड हेल्पलाइन उसको बोलते थे, और उसके लिए था, उसका नाम था सेव अ लाइफ लाइन। एंड वी हैड मेड अ होल टीम ऑफ सम साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट along with some police officers and some volunteers, and they used to sit, उस समय सिर्फ टेलीफोन लाइंस होती थी, मोबाइल होता नहीं था, तो we used to have a telephone dedicated line, और लोग जिनको भी ऐसी टेंडेंसी कभी ऐसे लगे कि डिप्रेशन में है पूरा, तो they could call there and talk to people and maybe then prevent suicide. So that was, I think, the first effort. Till I was here, it remained, and it slowly finished. But अब तो ऐसे कई सारी हेल्पलाइन चालू हो गई है, बट उस समय पहला था। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे को जानकारी है वो ये है कि सुसाइडल, जब भी कोई ऐसी मौका आए, किसी के मन में डिप्रेशन हो, कोई ऐसी फीलिंग हो कि सुसाइडल, तब कोई अगर आप बात कर लो किसी से, इफ यू टॉक टू समवन फॉर सम टाइम, तो वो जो समय निकल जाता है, और दैट जब आपको वो रहती है कि ज्यादा वो रहता है कि मैं डिप्रेशन है और कुछ करना है, और आप उस टेंडेंसी की तरफ जा रहे हो सुसाइड के, बट इफ समबडी टॉक्स टू यू फॉर दैट फ्यू मिनट्स, मे बी 5 minutes, मे 10 minutes, तो देन यू गेट ओवर दैट, एंड वंस यू गेट ओवर दैट टेंडेंसी, देन इट डजंट कम अगेन फॉर सम टाइम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एट दैट राइट इंटरवेंशन एट द राइट टाइम। और फिर उसका सोर्स सिर्फ वो व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ ये घट रही है। कोई बैठे बैठे मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि भाई फलाना व्यक्ति सुसाइडल है, ये व्यक्ति को चांसेस है कि आगे जाके सुसाइड करेगा। यू डोंट नो दैट, इट इज ओनली दैट पर्सन हु इज गोइंग थ्रू दैट फीलिंग, ही हैज टू और शी हैज टू अप्रोच द हेल्प एट दैट टाइम। एंड अगर कोई उनको मालूम है लोगों को, तो वो उसको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे ही वो आपने वो बोलते हैं उसको स्पीड ब्रेकर का जैसे ऐसा होता है, तो जैसे ही आप उसके ऊपर से चल गए तो ये या एटलीस्ट कम हो जाती है। the person who is going through it can only approach and get help. मतलब सर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जो इंसान इस चीज से गुजर रहा है उसे ही इस चीज का सॉल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, और ऐसे जगह पे पहुंचना है या अप्रोच करना है जो उनको मदद कर सकते हैं। जी सर। सर यू हैव और आल्सो ऐसी चीज
ऐसी चीज उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब कहीं कहीं नहीं होती तो फिर क्या करेगा वो व्यक्ति। अगर उनको मालूम है कि ऐसी एक नंबर है जिसपे मैं कॉल करके या अपना दिक्कत का समाधान हो सकता है, मेरा बात कर सकते हैं, पहले बात तो ऐसी चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज, ऐसी चीजों की जानकारी उन सिटीजन है, फिर जाके आप किसी को मदद कर सकते हो एट द राइट टाइम। जी जी सर। Sir, you have also contributed in the field of traffic management and improvement. So, sir, by keeping the current scenario of traffic in our mind, what message you want to give to all the citizens ताकि हमारा जो ट्रैफिक अभी चल रहा है वो भी properly manage हो और उसमें ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट भी लोग अपने मन से ही कर पाए। ट्रैफिक इज अ बिग प्रॉब्लम इन ऑल सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं न्यूयॉर्क गया था कुछ समय पहले, वहां भी इतना बड़ा ट्रैफिक है। यानी जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे ट्रैफिक इज ऑलवेज अ चैलेंज। और वो चैलेंज को सामना करने के लिए 3 तरीके होते हैं जो 3 E's बोलते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के। एक होता है ट्रैफिक इन्फोर्समेंट, एक है ट्रैफिक इंजीनियरिंग और तीसरा है ट्रैफिक एजुकेशन। तो ट्रैफिक इन्फोर्समेंट, मेरा जो आइडिया था, मैं यहाँ पे एडीजी था जोन में कुछ समय पहले, तो मैंने एक नया योजना बनाई थी टू ट्राई टू सॉल्व द ट्रैफिक प्रॉब्लम। और इंदौर जैसे इन इंडिया इट्स द क्लीनेस्ट सिटी नंबर 1, तो आई वांटेड दैट वी शुड मेक इंदौर नंबर 1 सिटी इन ट्रैफिक, गुड ट्रैफिक आल्सो, बेटर ट्रैफिक। उसके लिए आई हैड चोजन वन वे एंड वो ज्यादा समय में कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ द रीजंस। सो बट अदरवाइज आई थिंक दैट वुड बी द सक्सेसफुल वे। इन्फोर्समेंट का वाला जो पार्ट है वो ये है कि आपको इन्फोर्समेंट में पकड़ना जो है गलती जो कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं पूरी दुनिया में चलाई गई हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड भी योजनाएं चलाई गई हैं। एक होता है ऑटोमेटिक रेड लाइट डिटेक्शन, ASALVD। उसमें ट्रैफिक लाइट्स में सिग्नल पे वो लगे रहते हैं कैमराज एंड यू कैन डिटेक्ट जो वायलेशन कर रहे हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड भी बड़े सारी योजना चली हैं, पर उसका इतना फायदा नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा तो हुआ है बट फिर भी वो टेम्पररी रहता है। तो इन्फोर्समेंट हो गया। इंजीनियरिंग मतलब नए आप तरीके बनाओ, मल्टी लेवल पार्किंग बनाओ, अंडरग्राउंड टनल बनाओ, ऊपर से ब्रिजेस बनाओ, जो भी है, ताकि ट्रैफिक का स्पेस ज्यादा मिले और ट्रैफिक फ्लो ईज हो, कैरिज वे जिसे बोलते हैं रोड्स का। और आप इंक्रोचमेंट हटाइए, कई चीजें हैं जो इंजीनियरिंग में आती हैं, और ताकि ट्रैफिक अच्छे से चल पाए। वो भी बहुत किया गया है, नई नई योजनाओं से किया गया है और उसका भी फायदा हुआ है, बट परमानेंट नहीं हुआ है। तीसरा जो विंग है वो है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब लोगों को सिखाओ, उनको समझाओ कि आप अपना रूल्स का पालन स्वयं करें। आप ओवरटेक गलत साइड से मत करें, हॉर्न ज्यादा नहीं बजाएं, हमेशा हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने। एजुकेशन उसको जो किया गया है वो बड़े स्मॉल, मैं बोलूं टेम्पररी एफर्ट से किया गया। कभी ट्रैफिक सप्ताह आ गया, 1 हफ्ता कर दिया, उसके बाद भूल गए। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड, दैट इसको एज अ रूल, एज अ मतलब परमानेंट मुहिम हम करें और लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि आप ही का ट्रैफिक है, आप ही का शहर है, जितना आप अच्छे से पालन करोगे उतना अच्छा आपका ट्रैफिक रहेगा, उतना अच्छा आपकी जिंदगी रहेगी। तो वो हमने बहुत सारी योजना इंदौर में चलाई थी उस समय, पर वो ज्यादा क्योंकि वो रीजंस थे वो हम आगे नहीं, मैं नहीं कर पाया। तो मैं ये बोल रहा था कि ट्रैफिक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इन्फोर्समेंट और इंजीनियरिंग के तो बहुत सारे योजनाएं दुनिया भर में चलाई गई हैं, और उसमें कुछ सुधार भी हुआ है, बट वो परमानेंट इलाज नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा, और यहाँ पे हमने योजना चलाई भी थी इंदौर में, कि लोगों को अपने साथ जोड़ के, उनको समझा सिखा के, ट्रैफिक के नियमों का पालन उनसे ही करा के हम बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। और उसी से ही, जैसे अपन ने ट्रैफिक क्लीनलीनेस में इंदौर ने नंबर 1 पोजीशन कैसे पाई, लोगों की मदद से पाई, उनकी जागरूकता से पाई, वैसे ही इसमें भी करना चाहिए। मैंने कुछ समय तक, पर फिर किसी रीजन से वो नहीं चल पाया पूरा। बट आई थिंक वही तरीका है कि एजुकेशन के माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़ें। और क्योंकि मैं, जैसे आपने बोला मैसेज दीजिए, तो मेरा मैसेज यही रहेगा इंदौर के निवासियों को कि ये शहर आपका है, ये ट्रैफिक भी आप ही का है, और इसमें सुधार आप ही को करना है। और जब आप इसको सुधार करेंगे स्वयं ट्रैफिक नियमों का पालन करके, तब आपका शहर भी सुधरेगा और आपकी जिंदगी भी सुधरेगी। तो यही मोटो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि ये आप ही की समस्या है, आप ही को इसका समाधान करना है, और आप ही को अभी से उसको स्टार्ट करना है। और तरीका क्या है, नियमों का, जो सुविधाएं हैं ट्रैफिक की, सभी का स्वयं पालन करना है। किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तब आप एक्चुअली अच्छे नागरिक भी होगे और एक ऐसी समस्या का समाधान कर पाओगे, ट्रैफिक की समस्या, जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को छूती है। तो इसलिए आप खुद करिए, स्वेच्छा से करिए, तो सबसे अच्छी बात है। जी सर, मतलब ट्रैफिक का मैनेजमेंट और इम्प्रूवमेंट
लोग ही करेंगे तो वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। Yes. सर नेक्स्ट हम जानना चाहते हैं आपसे नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट अवेयरनेस के बारे में। नारकोटिक्स तो ड्रग्स ही होता है, नारकोटिक ड्रग्स होती है। ड्रग्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है नारकोटिक ड्रग्स, एक होती है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स मींस दवाइयां, और नारकोटिक ड्रग्स मींस जो दवाइयों को, जो ऐसी नशीले पदार्थ हैं जिससे लोगों को लत लगती है, आदत लगती है, एडिक्शन होता है और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद होती है। दैट इज नारकोटिक्स। एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो हैं उसका भी अब्यूज होता है और उसको भी लोग नशे के रूप में यूज करते हैं। वो एक अलग विषय है। जैसे एनाल्जेसिक्स जिसे बोलते हैं, पेन किलर्स, उसका अत्यधिक इस्तेमाल करके लोग एडिक्शन पूरा करते हैं। एंड सिमिलरली जो आपकी नींद की दवाइयां होती हैं उससे भी लोग यूज करते हैं। तो नारकोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल का भी मिश्रण करके लोग एडिक्शन करते हैं। और तो इसी को उसका उपचार मैंने आपको बता दिया, तरीका लोगों तक संदेश पहुंचना है, और अगर कोई फिर भी एडिक्ट हो जाए तो फिर उसका उपचार होना चाहिए। मतलब ड्रग भी दो टाइप से होती है, एक हमारे लिए बेनिफिशियल होती है एक एक्सटेंट तक, और दूसरी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। सर नेक्स्ट चले हम, तो मेरा क्वेश्चन अब वाइल्ड लाइफ पर है। सर यू आर वर्किंग फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम, यू इनिशिएट रोरिंग टाइगर कैंपेन, यू ऑल्सो लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो सर आपने, आपका शेड्यूल ऑलरेडी इतना बिजी, पर आपने सिटीजन का सोच रहे हैं, सोसाइटी का सोच रहे हैं, विमेन का सोच रहे हैं, फिर ड्रग वहां पर ट्रैफिक सब आया, लेकिन सर इसके बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में आपके मन में विचार कैसे आया? हाउ डू यू डिसाइड कि इस फील्ड में भी कंजर्वेशन का हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, वाइल्ड लाइफ का मेरे से वो अलग अलग ये हॉबी है। एक व्यक्ति को, मेरा मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सारगर्भित पर्सनालिटी बनानी है तो फिर आपको अपना काम भी करना है अच्छे से, अपने परिवार को भी देखना है, अपने को भी देखना है। एक वो हो गया, एक है समाज को देखना है, समाज के प्रति आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो आपको हमेशा सोचना है और वो करते रहना है। और तीसरा है आपकी अपनी हॉबी, कि आपका जब स्पेयर टाइम है, जब आपको स्ट्रेस से दूर होना है, जब आपको दूसरी चीजें भूल के कुछ नॉर्मल चीज करके ताकि आपको वापस रिफ्रेश हो जाए दिमाग, उसको हॉबी बोलते हैं। तो मेरा हॉबी हमेशा से वाइल्ड लाइफ रहा है। और क्योंकि मैं बचपन से, मेरे फादर आईएएस ऑफिसर थे, तो मैं बचपन में उनके साथ, जब वो कमिश्नर थे, मैंने जंगल वंगल में जाता था मैं बचपन में। तो मेरे को बहुत शौक था वाइल्ड लाइफ का उस समय से, और वो शौक मेरा अभी भी वो है। जब भी मेरे पास समय मिलता है, जब भी फ्री टाइम होता है, तो आई वुड लव टू गो टू वाइल्ड लाइफ के जो एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं। और फिर फोटोग्राफी भी मेरा एक शौक है, बिकॉज मेरा दूसरा हॉबी है ट्रैवलिंग। दुनिया में मैंने 60 देश देखे हैं, एंड ट्रैवलिंग करना सबसे एक अच्छी हॉबी होती है। उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने का मिलता है मौका। तो इसीलिए वो ट्रैवलिंग मेरी हॉबी थी। तो ट्रैवलिंग में मैं फोटोग्राफी करता था, तो वाइल्ड लाइफ मेरा शौक ट्रैवलिंग में फोटोग्राफी का पार्ट था। तो उन दोनों को मैंने कंबाइन करके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करी, और मैंने बुक भी लिखी है उसके ऊपर। तो दिस इज अ टाइम फॉर, जैसे मेरा हॉबी का टाइम है, आपको फ्री टाइम का कैसे आप इस्तेमाल करो, एंड वो मैं इसमें करता हूँ। तो मेरे को वो खुशी भी देता है, और मेरे को रिलैक्सेशन भी देता है, और अल्टीमेटली एक क्रिएशन भी देता है, ताकि मैं, जैसे बुक लिखी मैंने, नो दैट इफ यू फील ग्रेट दैट यू हैव क्रिएटेड समथिंग न्यू, तो इट इज ओवरऑल अ वेरी गुड, एवरीवन शुड हैव सम हॉबी, आई फील। तो मेरी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, ट्रैवलिंग है, किसी की रीडिंग होती है, कई लोगों की अन्य अन्य चीजें होती हैं। तो हॉबी जरूर रखना चाहिए, और उसमें समय निकाल के उसमें समय देना भी चाहिए। तो सर जैसा कि आपने बताया कि हॉबी होना चाहिए और करने के बाद हमें अच्छा लगता है, तो मेंटल पीस जिसे बोलते हैं, जो इनर हैप्पीनेस होती है, आप भी वो ट्रैवलिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से आप भी उसे अचीव कर लेते हैं? यस। इसके अलावा और कोई हॉबी है सर आपकी? ये दो? दिस इज इनफ टाइम कंज्यूमिंग, मेरे पास इतना समय फिर होता भी नहीं है। यस, ऑफ कोर्स आई प्ले, मेरे को गेम्स खेलना भी अच्छा लगता है, दैट्स आल्सो टाइप ऑफ हॉबी, स्पोर्ट्स। एंड देन रीडिंग, आई लाइक टू रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स, एंड बिकॉज आई रीड अ लॉट। तो उससे आप जब पढ़ोगे तब आपका नॉलेज बढ़ेगा। बिना पढ़े और मतलब सीखे समझे आपका नॉलेज बढ़ता नहीं है। तो इस फील्ड में, जो साइबर में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसमें नॉलेज को हमेशा अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए रीडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ माई हॉबीज। आई हैव सो मेनी, बट मेन हॉबी इफ यू से, देन इट वुड बी वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड ट्रैवलिंग। बट सब्सिडरी हॉबीज भी हैं, बट कम है, बिकॉज टाइम, इतना टाइम नहीं होता।
जी सर। सर आपने अभी बुक का कहा कि आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बेसिस पे एक बुक का जो नेम है दैट इज स्कोप विद द कैमरा वाइल्डनेस डायरी विद वरुण कपूर सर। मैं सर भी ऐड कर रही हूँ सर वहां पर। सर इट हैज 12 चैप्टर्स। मैंने उसके बारे में थोड़ा सा सर्च किया और जो 12 चैप्टर्स हैं उसमें आपने 12 डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व को पूरा कवर अप किया है। सर उसमें 12 जी। चैप्टर में आपने आपके एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। हाँ देखिए, मैंने लगभग मैं एक बार गिन रहा था, तो मैंने कभी करीब 85 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इंडिया में एंड अब्रॉड देखे हैं, और उसमें भी मैंने फोटोग्राफी भी करी है और मेरे पास कंटेंट भी है उनका। बट ये बुक मेरे पास, मैंने करीब 52 चैप्टर्स लिखे हुए हैं फॉर 52 सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। तो उसमें से क्योंकि मटेरियल इतना ज्यादा है, तो आई कुड ओनली गेट इन वन बुक 12 चैप्टर्स। तो मेरे पास अभी भी 40 चैप्टर्स पड़े हुए हैं जो मेरे को करना है, बट आई नीड टाइम फॉर दैट। बुक लिखना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, यू नो, टू हाउ टू राइट अ बुक इज रियली चैलेंज, स्पेशली फोटोग्राफी वाली बुक एंड ऑल दैट, कि उसमें आपको कैसे कंपोज करना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसको, मतलब इट्स अ चैलेंज। तो मैंने जो किया, जो बुक लिखी थी, उनको बहुत प्रयास लगे और कई बार उसको करेक्शन होती है, फिर सॉफ्टवेयर लगाते हैं, प्रिंट जो पब्लिशर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर में फिर कुछ गलतियां आ जाती है, तो इट्स अ बिग चैलेंज। तो मैं और भी लिखना चाहता हूँ, बट समय अभी मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास मटेरियल बहुत है। तो मैंने करीब, जैसे मैंने आपको बताया, 85 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखी है, इंडिया में भी देखी है। आई हैव सीन इन साउथ अफ्रीका, आई हैव बीन इन यूरोप, आई हैव बीन इन यूके, आई हैव बीन इन नॉर्थ अमेरिका में। योसेमिटी एक बहुत अच्छा नेशनल पार्क है, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, बट आई हैव डन फोटोग्राफी आल्सो, बट लिखने का अभी मेरे को समय नहीं मिला। बट वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप नई नई जगह में जाओ। सबके अपने इंटरेस्ट है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब जंगली जानवर और एक एक की लाइफ के, मतलब आई नो अबाउट एवरी वाइल्ड एनिमल, कि उनके हैबिट्स क्या हैं, वो कैसे, मतलब आई नो मोर देन मेनी। जब मैं जाता हूँ आजकल किसी साइंस, जैसे मैं गया कान्हा गया नेशनल पार्क, तो वहाँ पे आपके साथ एक वहाँ का लोकल गाइड रहता है जो आपको बताता है कि ये वो जानवर है, ये, तो उन सबसे जानकारी ज्यादा मेरी होती है। तो पहले तो मेरे को बताते हैं वो लोग, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं जब बोलने लगता हूँ तो उसको लगता है कि यार ये तो हमसे ज्यादा जानता है। तो इट इज, आई रियली एंजॉय इट, द वाइल्ड लैंडस्केप्स and the life of our wild, because that adds diversity to human life, I feel। इंसान, इस दुनिया में इंसान ही इंसान हो जाए तो फिर क्या मजा आएगा। हर टाइप की लाइफ फॉर्म होना चाहिए और उनको एक स्पेस मिलना चाहिए जीने का। तो मेरे को वैसे भी एनिमल्स से बहुत प्यार है। मेरे घर में आई हैव माय पेट डॉग, आई हैव माय काउज, आई हैव एवरीथिंग इन माय हाउस आल्सो। तो आई गिव लॉट ऑफ टाइम, व्हेनेवर आई हैव टाइम टू, उनके साथ बिताता हूँ मैं। गाय के साथ, एक मेरे पास एक मेरा पेट बुल है, वो बचपन से मेरे साथ है। तो अब वो नंदी इज वेरी बिग नाउ, बट वो सिर्फ किसी के पास नहीं है, मैं ही जा सकता हूँ उनके पास। तो वो ऐसे मेरे पास जानवरों से वैसे ही मेरे को बहुत प्रेम था, एंड वाइल्ड एनिमल्स आर इवन मोर फैसिनेटिंग। तो दिस इज दैट्स माय इंटरेस्ट। सबका अपना अपना होता है, मेरा ये है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपने इतनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करी है, मैंने भी आपका जब अकाउंट देखा तो उसमें बर्ड्स भी दिखे, एनिमल्स भी दिखे। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि विच वन इज योर फेवरेट, लेकिन आपने तो भी घर में ही इतने एनिमल्स के नेम बता दिए, पर फिर भी आप मुझे बता सकते हैं सर कौन से एनिमल को आप या किसी बर्ड को आप ज्यादा पसंद करते हैं? पेट्स आर ऑल, मतलब पेट को तो आपको आनंद, आपको खुशी देने के लिए अपन रखते हैं, और दे अगेन स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं वो। आपको कभी भी दिक्कत हो, कभी कोई तनाव हो, तो आप अपने पेट के साथ बैठ जाओ थोड़े समय, तो उस आपको बहुत आनंद आता है, खुशी मिलती है। एंड उस बेचारे जो आपके पास जो आपका पेट है उसको तो मिलती है, क्योंकि आप उनके साथ समय बिताते हो। तो सबसे अच्छा पेट में आप सभी जानते हैं इज अ डॉग, एंड दे कॉल इट अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो वो मेरे पास भी है, मेरा माय पेट, माय कोको, ही इज अ लैब्राडोर, एंड ही इज ब्लैक लैब्राडोर, एंड ही इज, सभी का फेवरेट है, तो मेरा तो बहुत ही फेवरेट है वो। और डॉग्स का क्या है, वो सब समझते हैं आपका इंसान का नेचर, आपके मूड कब अच्छा है, कब बुरा है, कब आप खुश हो, कब आप सैड हो, वैसे ही वो भी खुश और सैड होता है। तो इट इज अ प्लेजर टू हैव अ पेट इन द हाउस। एंड मेरे पास, मैं वेरी, माय वाइफ इज आल्सो वेरी रिलीजियस, तो वो हम काऊ भी रखते हैं अपने घर में, गाय हमने हमेशा रखी है, नॉट फॉर एनी अदर रीजन बट दैट उसका प्रेजेंस घर में, गाय का, स्पेशली देसी गाय जो होती है हमारी इंडिया की, वो उनको, जैसे हमारे पास गिर की गाय है, तो वो बहुत अलग ही एक वास्तु के मान से बहुत अच्छी है, एक अलग एम्बियंस है। और गाय के पास समय बिताओ तो ऐसे बोलते हैं कि अपने एक बुजुर्ग के साथ, जैसे गाय के पास आप बैठो तो ऐसा है जैसे आप किसी बुजुर्ग के पास बैठे हो, उतना आशीर्वाद मिलता है, उतना आपको वो मिलता है,
संतोष मिलता है, आत्मसंतोष। तो गाय तो हमारे पास है, मैंने बोला मेरे पास एक बुल भी है, ही इज अ मेल, और वो अब 6-7 साल का है, और वो उसकी माँ हमारे पास थी और वो पैदा हुआ तब से मेरे पास है, तो उसका नाम नंदी है, और वो भी बहुत अच्छा है। तो वो हमें आशीर्वाद देता है, वो भगवान शंकर की सवारी है, तो इसीलिए हम ये तो हमेशा रखना भी चाहिए, जिसको भी जितना समय मिले आपको हमेशा जानवरों की और इसका पृथ्वी में जो विभिन्नताएं हैं, तो जीव जंतु हैं, उन सब की साथ संपर्क रखना, या उनके और उनकी जिससे भी आप सेवा भी कर सकते हो, सेवा करना, ये इसीलिए तो इंसान इस धरती पे आया है। अपनी सेवा तो सब लोग करते हैं, जो ऐसे निरीह प्राणियों की, और जो इंसान जो प्रॉब्लम में है उनकी सेवा करें। आई थिंक वो एक्चुअली इंसान की जिंदगी जी रहे हैं, सभी को प्रयास करना चाहिए, और हम भी अपना छोटा छोटा प्रयास करते हैं इस क्षेत्र में। जी सर, मतलब आप जितना सोसाइटी के लिए, जितना अपने डिपार्टमेंट के लिए, फैमिली के लिए डिवोटेड है, उतना ही आप रिलीजन से भी रिलेट है। सर आगे बढ़ते हैं। सर वैसे तो आप ही सभी के लिए एक मोटिवेशन है, यू आर द इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, लेकिन सर आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट हुई हो? मोटिवेशन मीन्स इन द सेंस दैट आइडियल शुड, अपना कोई आपको आइडियल कोई हो जिसको आप चाहते हो कि मैं ऐसा बनूंगा एंड ऑल दैट। तो वो जो आप छोटे होते हो तो ऑब्वियसली यू नीड दैट काइंड ऑफ रोल मॉडल, जो आपको जिसको आप अनुसरण करना चाहो। तो सबका रोल मॉडल मेनली तो फादर होते हैं, मेरे तो फादर ही थे। मेरे फादर, सभी लोग चाहते हैं कि अपने फादर जैसे बने, और मेरे फादर IAS ऑफिसर थे, तो सरकारी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर। तो मैंने भी वही राह चुनी, तो मेरा इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं, बट अकॉर्डिंग टू माय मदर, बट फादर जैसे बनना, फादर वाज ऑलवेज माय मॉडल, माय आइडियल, एंड I wanted to be like him, so I became this. And then इसमें आने के बाद then you make your own effort, और आप दूसरों के लिए अगर रोल मॉडल बन जाओ तो वेरी गुड, दैट्स इवन द बेस्ट थिंग। अगर ऐसा हो जाए कि आप पे लोग देख के आप बोलेंगे हम भी ऐसा बनना चाहते हैं, तो देन दैट्स वेरी वेल लाइफ अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, वो इतनी छोटी नहीं होती। और मोटिवेशन तो फिर आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है, कि आपको नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पड़ता है, नए नए आइडियाज आपको लेके आके फिर उस पर अमल करने का प्रयास करना पड़ता है, ताकि आप मोटिवेटेड रहो। तो दैट्स व्हाट आई हैव डन इन माय करियर, नॉट दैट रूटीन पुलिस ऑफिसर जैसे होते हैं कि वही सुबह से अपना करा, नौकरी करी और फिर पुलिसिंग में ही आगे बढ़े। मैंने बहुत क्षेत्रों में काम करने का प्रयास किया, ताकि मैं मोटिवेशन आपको होता रहे, और नए नए चैलेंजेस आते रहे, नए नए चैलेंजेस आप एक्सेप्ट करते रहो। तो दैट इज वन वे विच यू कैन डू, सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ, ताकि यू कैन रीच हायर गोल्स। जी सर, सर एज आई हैव सेड कि यू आर द इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, आपके जैसा इनफैक्ट मैं बहुत ट्राई करती हूँ, आपसे सीखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं सर, एंड मैं बहुत ज्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं भी आपकी चीजों को अपने जीवन में उतार पाऊँ। सर साइको प्रोजेक्ट जो आप जैसे अभी रन हो रहा है सर, इंस्टीट्यूट उससे कैसे जुड़ सकते हैं? कोई भी इंस्टीट्यूट? यस सर। वी वांट दैट पीपल, अभी तो स्कूल्स के लिए हम कर रहे हैं, स्कूल हमने 106 स्कूल कर चुके हैं। हमारा अगला सेशन है 26-27 को, जिसमें आई थिंक 25 स्कूल्स और करेंगे हम। तो एनीबडी, मतलब मैं, हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर उसकी हैं इंस्पेक्टर पूनम राठौर, उनका नंबर मालूम ही होगा आपको, और लोगों को पब्लिक भी पता ही सकते हैं, जिसको इंटरेस्ट है। एज एन इंस्टीट्यूशन वी वांटेड टू स्टार्ट इंस्टीट्यूशन में, जैसे आप किसी, अभी हमने कॉलेज का करा नहीं, बट कॉलेजेस का भी करेंगे हम। तो आपको जब पता चले, जिसको भी जो भी आए, कांटेक्ट पूनम राठौर, मेरे को कांटेक्ट करे कि हमें अपने टीचर्स या हमें खुद इसमें आना है, तो वी विल इनवाइट यू। इट इज ओपन फॉर ऑल, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, देयर इज नो सिलेक्शन प्रोसीजर, ओनली आप खुद आके आप ऑफर करें, और जब वो आएगा समय आपका, जब स्लॉट, तो हम आपको बुलाएंगे, आप आइए और सीखिए और हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़िए। देयर इज नो, इसमें कोई बार नहीं है और कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, जिसको भी इंटरेस्ट हो, इंस्टीट्यूशन बेस्ड व्यक्ति हो, ताकि वापस जाके किसी को पढ़ा सके, समझा सके, तो उनका स्वागत है। और नंबर मेरे हैं ही, जिसके बाद आप भी बता सकते हैं, है ना? यस सर, मतलब सिंपल स्टेप है। जी। सर अब जैसे कि जहां आपका नाम आता है वहां पर साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर अवेयरनेस बिल्कुल आ जाता है। अभी तक तो मैंने सारे एडिशनल पॉइंट्स ट्राई किए थे कवर अप करने को, स्टिल अभी एंड नहीं हुए हैं सर, बट फिर भी अब मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहती हूँ साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर अवेयरनेस को, जिसके लिए आपने ब्लैक रिबन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो सर यहाँ पर सिर्फ कुछ लाइंस लोगों को, सिर्फ एक जागरूकता के लिए आप साइबर सिक्योरिटी या साइबर अवेयरनेस, साइबर क्राइम के लिए
क्या मैसेज यहाँ पर आप ड्रॉप करना चाहेंगे? देखिए, मैंने वो पहले भी एक छोटी सी चीज उसमें बताई थी, मैं उसको फिर रिइटरेट करता हूँ। मेन चीज ये है कि साइबर सिक्योरिटी इतना बड़ा खतरा बन गया है मानवता के लिए कि उससे अब समय है कि अब अपन उससे सामना करके उसको उससे सुलझाएं उस प्रॉब्लम को, क्योंकि अभी तक बहुत देर हो गई है कि लोगों ने इसको बिल्कुल इग्नोर किया है और उसको ऐसे सोचा है कि ये भी एक, चलो जैसे खतरे होते हैं दुनिया में, ड्राइविंग में खतरा होता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे उसमें एक साइबर में भी खतरा हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है, छोटा मोटा कोई फ्रॉड हो सकता है, फिशिंग हो सकती है, पैसे जा सकते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। बट इट इज नॉट ओनली मनी, यू कैन लूज मनी डेफिनेटली, बट मनी के साथ साथ यू कैन लूज योर रेपुटेशन, you can lose your name, you can lose your identity, you can lose your peace of mind, you can lose even your life. तो इतना बड़ा खतरा है, वो 84% की रेट से बढ़ रहा है वो एवरी ईयर, विच इज वेरी अलार्मिंग एंड वेरी डेंजरस। तो ये सब चीजें देखते हुए अपन को बहुत समय हो गया है, आ गया है कि हम उसका सामना करें और उसको, उससे अपने आप को सिक्योर करें, क्योंकि इसमें खतरा दिखता नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला, तो लोग कुछ भी करते हैं ये सोच के कि कुछ होने नहीं वाला है, बिकॉज आपको सामने कुछ खड़ा दिख नहीं रहा खतरा, बट जो खतरा नहीं दिखता है वो दिखने वाले खतरे से ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 मैं हमेशा अपने मंत्र बताता हूँ, मैं फिर बोल देता हूँ जिन्होंने नहीं सुने हैं। मैं 5 मंत्र को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले ये मंत्र का है कि आपको हमेशा सुरक्षा की मानसिकता बनाना है। वर्चुअल दुनिया में खतरा नहीं दिख रहा है उसका मतलब खतरा नहीं है, नो, दे है, बट आपको दिख नहीं रहा है। तो वो मानसिकता बनाओ जो आप असली दुनिया में सुरक्षित रहने की बनाते हैं। उसके बहुत तरीके हैं, उसमें मैं नहीं जा सकता, बट जस्ट मेक अ माइंडसेट ऑफ सिक्योरिटी, दैट्स फर्स्ट। सेकंड इज शॉर्टकट से बचो। वर्चुअल दुनिया में बहुत शॉर्टकट्स हैं, आपको सुविधा इतनी है कि आप कहीं भी लिंक दबा के दूसरी जगह चले जाओ, कहीं भी फाइल डाउनलोड कर लो, कोई भी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, बहुत सुविधाएं हैं ताकि आपकी जिंदगी आसान होती है, आपको मनोरंजन होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर शॉर्टकट को अपन को फॉलो करना है, वो शॉर्टकट गलत रास्ते में भी जा सकता है। इसके बारे में आपको अवेयर रहना है, वो माइंडसेट बनाना है। तीसरा है लालच से बचिए। लालच मतलब जितने भी फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं साइबर दुनिया में, वो इंसान की लालच की भावना पे आधारित है। वो ऐसे ही प्रलोभन देते हैं, इनको बोलते हैं फिशिंग अटैक्स, कि आपको घर बैठे लॉटरी दे देते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं, घर बैठे आपको नौकरी लगा देते हैं और आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं, घर बैठे आपको रिश्ता बना देते हैं और लोगों को बड़े बड़े क्राइम में फंसा देते हैं। तो ये आप लालच की भावना जो होती है ना, कि बिना कुछ करे, बिना कुछ दिए आपको मिल जाता है सब कुछ, ये होता नहीं है दुनिया में, और वर्चुअल दुनिया में भी नहीं होता। तो उसमें आप वो भावना बनाओ कि हमें काम करके सब प्राप्त करना है, ये फ्री का नहीं मिलता और उसमें फिर खतरा होता है। तो इसलिए लालच से बचिए। एक और है, मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ भी करने से पहले सोचिए, थिंक बिफोर यू एक्ट। क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम बिना सोचे समझे लोग कर रहे हैं, कुछ भी फॉरवर्ड कर दिया, शेयर पोस्ट कर दिया, सोचा भी नहीं कि इसका क्या प्रभाव होगा दूसरे पे या अपने पे। और एक बार सोचिए, मेरा ये कहना है, 5 सेकंड 10 सेकंड सोचिए, फिर वो बटन दबाइए लाइक का। जरूरी है कि जैसे आपने, मैंने अगर कोई कंटेंट पोस्ट कर दिया तो आपको उसको लाइक ही करना है बिना देखे मैंने क्या क्या उसमें मटेरियल क्या है। लोग ऐसे करने लगे हैं। तो इसीलिए थिंक बिफोर यू एक्ट, सोचा समझा निर्णय ज्यादातर सही, जल्दबाजी में लिया निर्णय ज्यादातर गलत। और नेक्स्ट इज कि आप किसी नॉलेज को हमेशा बढ़ाइए। हैव फुल इंफॉर्मेशन, हैव फुल नॉलेज। ये जमाना है इंफॉर्मेशन का, तो आपको इंफॉर्मेशन रखनी है, नॉलेज रखना है और फिर कार्रवाई करनी है। हर चीज के बारे में जानिए, समझिए, फिर करिए। ये वर्चुअल दुनिया में आप नहीं करोगे तो आप गलती जरूर करोगे, बिना जाने पहचाने कुछ भी करते हैं। एंड आखिरी चीज है, वर्चुअल दुनिया में आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आपके सामने ये स्क्रीन है, सिर्फ मैं हमेशा दिखाता हूँ, इस स्क्रीन के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हो। आप किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी स्थान पे आप नहीं रिएक्शन दे रहे हो, आप स्क्रीन को देख रहे हो और इस पे जो दिखाया जा रहा है उसको आप बिलीव करके जो करना है कर रहे हो। ठीक है, तो इस पे तो आपको कुछ भी दिखाया सुनाया जा सकता है, जरूरी थोड़ी हर चीज सही है। तो इसीलिए आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, अपने विवेक का, अपने नॉलेज का, अपनी सतर्कता का परिचय देके काम करना है ताकि आप सुरक्षित रहो। तो ये इसके 5 मंत्र हैं, इस पे याद रखिएगा, लोग याद रखें और इसको अमल करें, तब साइबर दुनिया में आपकी सुरक्षा बेहतर होगी। यस सर, आपने क्राइम्स को और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में होने वाले फ्रॉड को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया सर, एंड आई होप कि सभी लोग इसको समझेंगे और उससे अमल भी करेंगे। सर अब मेरे पास वैसे 2 क्वेश्चन है सर, मैंने ट्राई किया है सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए। सर एक है पुलिस डिपार्टमेंट से और दूसरा है पर्सनल आपके बारे में, नॉर्मल आपकी पर्सनल चीजें सिर्फ है सर। वो पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन लेती हूँ सर, जैसे कि आप बहुत लॉन्ग टाइम से इस फील्ड में हैं,
तो सर आपने कई चेंजेस देखे होंगे क्राइम्स के रिस्पेक्ट में, तो हम देख ही रहे हैं आजकल, आपने जैसे कि अभी बताया साइबर क्राइम्स होते हैं, तो क्राइम्स तो बहुत कई गुना चेंज हुए हैं। आपने कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करे हैं सोसाइटी में, और या फिर पुलिस जैसे पहले जो काम करती थी और अभी जैसे काम करती है, उनमें कुछ चेंजेस आपने ऑब्जर्व करे और आप उन चेंजेस को कैसे लेते हैं? देखिए चेंजेस बहुत हैं, मैसिव चेंजेस हैं दुनिया में भी, सोसाइटी में भी, और एज अ रिजल्ट पुलिसिंग और पुलिस विभाग में भी। पुलिस विभाग की बात करूं तो पहले मैं ये बता सकता हूं कि पुलिस के पास संसाधनों में बहुत वृद्धि हुई है। रिसोर्सेस, हम जब आए थे पुलिस में तब बहुत कम रिसोर्सेज होते थे, बिल्डिंग्स भी पुरानी थी, गाड़ियां भी नहीं होती थी, आपके जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो भी आउटडेटेड होते थे, ये बहुत बहुत प्रॉब्लम थी। अब तो देयर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर संसाधन जो है, चाहे व्हीकल्स हो, कम्युनिकेशन के साधन हो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत सारा उसमें विकास हुआ है। एंड स्पेशली इवन पुलिस फोर्स में नंबर्स में भी वृद्धि हुई है, तो अभी भी वो कम है कंपेयर टू सोसाइटी के स्टैंडर्ड से, मापदंड में कि कितने होने चाहिए उससे तो कम है, बट फिर भी पूर्व से बहुत बेहतर है। तो रिसोर्सेज एंड मैन पावर हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, चैलेंजेस हैव आल्सो इंक्रीज्ड। पहले बहुत ऐसे कोई इतनी सारी चीजें नहीं थी जिसको पुलिस को चैलेंज हो, अब तो इतने नए नए चीज चैलेंजेस हैं, रोज कोई चैलेंज है। साइबर इज अ वेरी बिग चैलेंज, ऐसे करके नार्कोटिक्स को इतना बड़ा चैलेंज नहीं था पहले, बट अब इट्स बिकम अ वेरी बिग चैलेंज, ट्रैफिक वेरी बिग चैलेंज। सो challenges have become also very big according to resources. And third is people's expectation, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है पुलिस से वो भी बहुत बढ़ गई है, और पहले और आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। पहले लोगों को एक अलग एक मानसिकता होती थी, अब पुलिस से ज्यादा उनको अपेक्षा है कि आपने ये भी नहीं किया, आपने ये भी ठीक नहीं किया। जो चीज हमारा काम होती भी नहीं है उसमें भी कई बार पुलिस के ही दोषी ठहराया जाता है। तो एक्सपेक्टेशंस हैव बिकम अ लॉट एंड परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव डेफिनेटली। पुलिस की परफॉर्मेंस इन मेनी रिस्पेक्ट्स, आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है, जो डेंजर जो क्राइम सिचुएशंस का रिस्पांस होता है, लोग जो कॉल करते हैं, वो इम्प्रूव हुआ है। कई चीजें इम्प्रूव हुई हैं और कई चैलेंजेस सामने आए हैं और कई चीजें करना अभी बाकी है। मेरे विचार में एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं हमेशा अपने जब फोर्स के ऑफिसर से एंड जवान से बात करता हूं तो वो ये चैलेंज है कि हमको अपना व्यवहार को सुधारना है। पुलिस बिहेवियर, पुलिस जो संवेदनशीलता है उसमें बेहतर करने की अभी भी अपेक्षा है और अभी भी स्थान है, तो उसमें इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। तो मैंने बोला ना, अभी करना भी बहुत है, वो भी बहुत अच्छा चुका है, और अभी जो वर्तमान परिस्थितियों को डील करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमारे रिसोर्सेस के साथ जो करना वो और भी मुश्किल हो जाता है। साइबर ये जो सोशल मीडिया आया है उसके कारण इतना ज्यादा लोगों में एक्सपेक्टेशन है, इतना ज्यादा एकदम से पैनिक फैल जाता है, इतना ज्यादा वो हो जाता है, अलार्म हो जाता है सोसाइटी में, एक नॉन इशू से भी या कभी कभी छोटे से इशू से भी इतना ज्यादा रिएक्शन होता है जैसे कि बहुत बड़ी चीज हो गई, और उसको फिर हैंडल करना, उसको कंट्रोल करना और इमीडिएटली करना, ये सब चीजें बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं जो आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा मुश्किल होंगी। पर फिर भी सुधार बहुत है, अपेक्षा बहुत है, और आगे हमको कार्रवाई करने की चेष्टा भी हमारे को बहुत है। तो इट्स अ मिक्स, good things have happened, challenges have come up, and improvements are still required to be done. जी सर, तो जो भी चैलेंजेस देखे आपने बताए आपके पर्सपेक्टिव से उन्हें, एंड सर जो बातें आपने बताई आई थिंक वो सोसाइटी के लोग भी अमल कर सकते हैं कि संवेदनशील रहे, अपना व्यवहार ठीक रखें। सर अब जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो आप समझ सकते हैं कि रैपिड फायर राउंड है, सिर्फ आपसे रिलेटेड है सर, आपको उसका इंस्टेंट आंसर देना है। सर और मेरे पास ज्यादा कलेक्शन नहीं रहा है क्योंकि आपसे मैं क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, पहले तो मैं उसमें बाउंड थी, पर फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स निकाल कर लाई हूँ यहाँ पे। सर योर फेवरेट डिश? What? फेवरेट डिश, फेवरेट फूड? Favorite food? Yes, sir. Favorite food, I love biryani. जी सर। सर फेवरेट प्लेस इन इंडिया? Favorite place इन इंडिया? in India, as a tourist or through stay? For exploring the things as you like, traveling. As a tourist, I would Yes, say sir. Rajasthan is the best state. मेरे को Yes, सबसे अच्छी लगी. And to stay, रहने के लिए, I would say Indore is the best. Indore. Sir, your favorite color? My favorite color, blue. Blue. You have said that your role model is your father. Sir, favorite season, summer or winter? Winter. Winter. Sir, do you like movie?
Yes or no? Yeah, yes, I do. Your Yes. favorite hero? My favorite hero in today's time or overall? दोनों बता दीजिए सर आप. दोनों बता दीजिए. ओवरऑल अब यार मैं इतनी मूवीज भी नहीं देखता, बट फेवरेट हीरो तो मेरा होगा सलमान खान, है ना, ये अभी का. और but overall if you say then it will be maybe Dharmendra. Yes. Dharmendra. Sir, your best friend? My best friend, my wife. जी सर. सर, सिंस यू आर अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई फोटोग्राफ वाली पिक्चर आपको इतनी पसंद आई हो जो फ्रेम करा के आपने उसे अपने पास रखा हो, ऑफिस में, घर में? मेरे पास बहुत फोटोग्राफ्स है वाइल्ड लाइफ की, बट वो सारी मेरे अपने द्वारा ली गई है. देयर आर लॉट ऑफ देम. मेरे ऑफिस में भी गैलरी है बहुत बड़ी जो मेरी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स की है. तो देयर आर लॉट ऑफ देम. बहुत अच्छी है वो तो. एनीवे बहुत सारी होती है, बट यस. ये राउंड तो मैं यही एंड करती हूँ सर, लेकिन जैसे यहाँ पर बात आई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की, तो आपने जैसे कि बताया, मुझे अभी तक पता था कि उस बुक में सिर्फ 12 चैप्टर्स ही है, बट आपके पास और इतना कलेक्शन है जो कि भी रेडी टू पब्लिश है, एंड आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है उसके लिए. तो ये भी एक नई इन्फॉर्मेशन है सर, ये मुझे नहीं पता थी, और ये नेट पे भी अवेलेबल नहीं है सर. नेट पे ओनली 12 चैप्टर्स आर देयर. हाँ, दैट्स ऑल. बाकी मैंने अपने अभी तो मैंने छापी नहीं है ना, तो इट्स विद मी पर्सनल, नॉट इट इज नॉट इन पब्लिक डोमेन. Yes, sir. So, thank you so much, sir, for being with us, for giving your valuable time, for you. enlighten us with your knowledge. Thank you so much, sir, that you found the time from your busy schedule and committed with us for this 1 hour. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Best of luck. Best of luck. And Bye-bye. sir, I would like to thank you on behalf of our head of the department, Dr. Manish Pundik, sir. Just because of some urgent work, he was not able to join us, but he said me that just convey my message. So thank you so much, sir, from the Dr. Manish Pundik, sir, side. Okay. And thank you so much from entire IPS Academy, sir. Thank you so much. Thank you. Good day. Good day, sir. And last message for the viewers, if you like the video and want such type of videos again on different topics, then don't forget to like the video and subscribe our channel. Thank you so much.